I know you can, if you want to stand up, you can, because we have an incredible moment coming up. I want to bring on now the woman we've been all admiring for the last month. We've all been admiring her for the last month, and I thought in this moment, a celebration of two wonderful achievers on this stage, along with some of our other achievers, can we please put our hands together for the woman who gave India a World Cup? This is so amazing. And before we give Janvi her honors, I have one request. We have the wonderful women of the Air Force and the Army. May I ask you, ma'ams, to join us on stage, please? Can we have our 4 officers? You have to give them space to come up, please. You have to give them space to come up. Please, if we can allow them to come up. Ma'am, give them space to come up, please. Everybody needs to go back. Everybody needs to go back. Everybody needs to go back. Back, 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 back. Back, please. In your seats. In your seats. No more thronging the stage. Yes. Everybody have a seat. Come, ma'am. Come. Harman, we need you in the center. We need you right here in the center. And I know this is a very, very special moment. I just wanted all of these incredible women to be on stage together. Our military officers, our World Cup champion who made history by giving us the first Women's World Cup, oh my God. And the amazingly thoughtful Janvi Kapoor. And I wanted all of you to present this to Janvi. Harman's honor is coming. We have a surprise for her at the end of her conversation. But Harman ji, may I ask you to do the honors with Janvi ji? Ye ma'am. Can we have a huge round of applause? This is such a beautiful moment that I want to hear the whole hall. Thank you. Thank you. I'm sure this never gets old. Thank you. And thanking our officers. Thank you. Please, ma'am. Let her. Now, come on. No. Now, in your chairs, ma'am. In your seats, please. Can we now put our hands together to properly welcome the World Cup champion? वैसे ना मुझे आवाज थोड़ी कम आ रही है. और. Making history in a way that I'm sorry to say, उस दिन किसी को याद भी नहीं था कि एक मेंस क्रिकेट का भी मैच था, right? Harman, thank you, and I'm such a fan. Thank you. आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी भी रियल लग रहा है कि अभी भी सिंक इन नहीं हो? आप तो काफी दिन हो गए. To be honest, अभी भी थोड़ा सा माइक ऊंचा. To be honest, अभी भी सिंक इन नहीं हो रहा. But the kind of love and support we are getting from entire country. Thank you so much, guys. I think आप लोगों के बिना भी ये possible नहीं था, because I know we have been working hard, but जब अपने साथ देते हैं तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती. तो I think the kind of support we got in the stadiums. Thank you so much. क्या बदला है आपकी जिंदगी में जब से ये वर्ल्ड कप आप घर लाई for this country? Your life must have totally changed as a sportswoman, but also in many other ways. You know, you're on fashion magazine covers. हर इंसान आपको फोन करके कह रहा है हरमन प्लीज आ जाओ, जैसे कि मैंने भी किया. And I'm so grateful you came. जिंदगी थोड़ी बदली हुई लग रही है. जी हाँ, क्योंकि
मुझे पता था कि अगर हम वर्ल्ड कप चैंपियन बनेंगे तो थोड़ा सा ऊंचा कर मैम। हाँ। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, लेकिन इस तरह की लाइफ होगी ये नहीं पता था। आई बीन ट्रैवलिंग एंटायर कंट्री, कभी इधर कभी उधर, बट जो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, जो सबसे प्यार मिल रहा है, जो सब दे आर शोइंग के कैसे उन्होंने सेलिब्रेट करा, और मैच का हर एक मोमेंट जैसे उन्होंने देखा और हर एक मोमेंट में कैसे वो फील कर रहे थे। आई थिंक दैट डे हम लोग ही नहीं खेल रहे थे, हमारे साथ पूरी कंट्री खेल रही थी, और सबका जो प्यार मिल रहा है, आई थिंक वो हमेशा मुझे याद रहेगा। Did you ever think that a cricket stand would be named after you? I know now that a stand is going to be named, by the way, guys, after Harmanpreet. It's amazing. जी हाँ, क्योंकि इससे पहले जितना मुझे पता था कि सारे रिटायर क्रिकेटर्स का ही स्टैंड बनता है जब वो क्रिकेट से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वेरी ग्रेटफुल टू पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन जिन्होंने खेलते टाइम भी मुझे ये ऑनर कराया। तो आई थिंक दैट शोज़ कि आप जब हार्ड वर्क करते हो तो आपका हार्ड वर्क ज़रूर पे ऑफ करता है। तो आई थिंक इतने सालों की मेहनत, इतने सालों का पेशेंस, तो आज उसका सारा रिजल्ट मिल रहा है, तो बहुत बहुत खुशी है। हरमन, जब आप जीते मैच तो एक विजुअल था जिसमें आई थिंक आपके पापा आपको हग कर रहे हैं और उठा रहे हैं लाइक यू आर हिज लिटिल गर्ल, राइट? और वो बहुत दिल को छूने वाला इमेज था। आपके साथ आपकी फैमिली का भी एक इन्वेस्टमेंट, एक स्ट्रगल रहा है। आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, अपने मम्मी पापा के बारे में। जी हाँ, मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट करा। पापा तो डे वन से ही, क्योंकि क्रिकेट के खुद भी बहुत बड़े फ़ैन थे, और जब से उनको पता चला कि मुझे क्रिकेट रियली मतलब बहुत पसंद है और मैं क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका। वो हमेशा ही वॉज फाइंडिंग आउट कि मैं कैसे आगे क्रिकेटर बनूँ। और मतलब हाउ ओल्ड वर यू व्हेन ही स्पॉटेड दैट टैलेंट? जब मैं सिर्फ पापा के साथ खेलती थी, मेरे फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, तो ऐसे कर कर मैं 10th स्टैंडर्ड तक तो मैं वैसे ही खेलती थी। तो मुझे क्रिकेट बहुत लेट पता चला कि गर्ल्स भी क्रिकेट खेलती है। तो मैं 10th स्टैंडर्ड के जब मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे, उस टाइम पर मुझे पहली बार बहुत सारे कोचेस मिलते थे जो बोलते थे कि बाकी के स्पोर्ट्स को सीरियसली मैं अगर लूँ तो मेरा करियर बन सकता है, बट मुझे हमेशा से क्रिकेटर बनना था। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे वो आए और उन्होंने मुझे पूछा कि अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो तो मैं क्रिकेट की टीम बनाऊंगा आपके लिए। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम समबडी केम एंड आस्क्ड मी कि इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट तो क्रिकेट की टीम मैं बनाऊंगा आपके लिए, मैं अपने कॉलेज और स्कूल की लड़कियों को बोलूँगा टीम खड़ी करने के लिए। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम, और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि पहली बार जो मैं करना चाहती हूँ मुझे वो करने का मौका मिला। तो उसके बाद आई थिंक द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव गॉट फ्रॉम हिम एंड माई फैमिली, दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। एंड मम्मा ने तो हमेशा डे नाइट सपोर्ट करा है, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं करा। इवन दो गली मोहल्ले में जो आंटियाँ रहती हैं वो उनको बार बार बोलती भी रहती थी कि ये सारा दिन लड़कों के साथ खेलती रहती है, इसको थोड़ा स्टडी में फोकस करने के लिए बोलो या फिर घर के काम करने के लिए थोड़ा सा इनकरेज करो। बट कभी भी उन्होंने वो चीज़ें मेरे तक आने नहीं दी, मुझे हमेशा सपोर्ट करा। और ये वर्ल्ड कप में मैंने पहली बार ऐसे देखा था कि मेरे मम्मी भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे। शी वॉज ओनली टॉकिंग अबाउट कि जीतना है जीतना है। इससे पहले वो हमेशा ये बोलते थे कि 2 टीमें हैं, एक जीतेगी एक हारेगी, लेकिन कभी भी ऐसे हार्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, कभी भी ये मत सोचना कि आप क्यों हारे। लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वाज सो इन्वॉल्व एंड आई वाज लाइक कि पहली बार मम्मी से भी आ रहा है, क्योंकि नहीं तो मम्मी हमेशा ये बोलते थे कि कोई बात नहीं, दो टीम है, एक जीतेगी एक हारेगी। तो दिस वाज इवन शी वाज सो इन्वॉल्व, क्योंकि उनको भी ऐसे लग रहा था कि बहुत साल हो गए, बहुत सालों से आई बीन वर्किंग हार्ड और मेरी टीम कब से हार्ड वर्क कर रही है, लेकिन दिस वाज द टाइम। और सबसे बड़ी बात थी कि इंडिया में मैचेस हो रहे थे, इंडिया में वर्ल्ड कप था, द काइंड ऑफ सपोर्ट वी वर गेटिंग फ्रॉम ऑल इंडियन फैंस, दैट वाज सो स्पेशल। एंड जब वो पहली बार स्टेडियम में आए और उन्होंने देखा, और शी वाज लाइक और बार बार जैसे जब भी मैं उनको मिलने जा रही थी उनके रूम में, दे वर ऑल्सो इन द होटल रूम, तो टीम मीटिंग जैसा माहौल क्रिएट कर देते थे कि क्या प्लान कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कल क्या करना है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे। नहीं तो वो हमेशा यही बोलते थे कि खेलो, दिल से खेलो, लेकिन हार जीत तो बनी है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। वो भी
पूरे कंपेटिटिव मोड में आ गए इस हाँ? बार तो वो भी फुल इन्वॉल्व थे कि नहीं नहीं इस बार जीतेंगे और जीतना ही है। आपने कहा ना कि जैसे गली मोहल्ले में आंटी जीज होती थी जो कहती थी भाई ये कि वो लड़कों के साथ खेल रही है, कितना मुश्किल था सोसाइटल एक्सेप्टेंस फॉर योर जर्नी, क्योंकि आप इस पॉइंट पे तो अब पहुंची हैं, लेकिन ये जर्नी एक लोनली जर्नी भी रही होगी, आपकी फैमिली पे भी प्रेशर, जो सोशल प्रेशर है वो भी होता होगा लड़कियों पे जैसे होता है, तो वो कितनी लोनली, कितनी मुश्किल वो जर्नी रही? आई थिंक यहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने कभी भी इन चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं हुए, क्योंकि वो हमेशा ऐसा नहीं था कि पापा के पास पापा के फ्रेंड्स नहीं आते थे, और मम्मी का तो मुझे पता है कि जब भी मैं कोई आंटी घर पे मम्मी के पास बैठी देखती थी तो मुझे लगता था अभी ये आ गए हैं, कुछ ना कुछ मम्मी को पक्का बोलेंगे और फिर पता नहीं मम्मी कैसे रिएक्ट करने वाली है। लेकिन मतलब मेरे पेरेंट्स दे वर सो सपोर्टिव, उन्होंने कभी ऐसे नहीं मुझे बोला, और इनफैक्ट वो उनको ऐसे लगता था कि इसको स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट है और किसी ना किसी स्पोर्ट्स में ज़रूर जाए, क्योंकि मेरे घर के सामने जो कॉलेज भी था वहाँ पे मल्टीपल स्पोर्ट्स होती थी, बट क्रिकेट कोई नहीं खेलता था। हम लोग ही क्रिकेट खेलते थे, हमारी ही बॉलें लोगों को लगती रहती थी और गालियाँ खाते रहते थे। लेकिन आई थिंक बिना पेरेंट्स की सपोर्ट के कुछ नहीं होता, और मेरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं, और उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। अमेजिंग। हाउ डिड यू कीप द सेल्फ बिलीफ? होता है ना कि जब सब लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं तो खुद के विश्वास पे ही जिंदगी आगे चलती है। एंड ऑफ कोर्स द विनिंग कैच वाज योर्स, द कैप्टन, यू नो यू आर द कैप्टन, बट लोगों की 10,000 जजमेंट्स होती हैं जो व्हेन द सन इज राइजिंग सब सलाम करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ नहीं होती तो सब जज करते हैं, राइट? सो आई एम सेइंग, you know, as a captain, I think your first World Cup as a captain? ODI. ODI, yeah. Did you feel the pressure of that judgment? कि जो मतलब होता है ना कि लोगों का अगर ये आउटकम अलग होता तो लोग हार्श भी हैं, हमारे फैंस हार्श भी हैं, तो वो कितना प्रेशर रहा? देखिए पूरी लाइफ मैंने हारा ही है। अरे दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग जीते हैं। You're now what happens in the end, the winner takes it all, right? हारने के बाद क्या फील होता है, लोग कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, वो तो मुझे पहले से ही पता था। तो इस बार सिर्फ यही था कि लेट जस्ट कीप एवरीथिंग अवे, थिंक के जीतने के बाद क्या होगा। तो जीतने के बाद क्या फील होता है, कैसे सेलिब्रेट करना है, हम लोग वही डे एंड नाइट सोच रहे थे। और मेरा ये बिलीव है कि टीम एक्टिविटी में सबका एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले शायद हम 3-4 लोग थे जो बिलीव करते थे कि हम अच्छा कर सकते हैं, बाकी की लड़कियों के ऊपर मतलब वो इतना बिलीव नहीं करती थी, या आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट दिस टाइम आई मेड श्योर कि जितने भी हमारे कैंप हो रहे थे, जितनी बार भी हम लोग एक दूसरे को मिल रहे थे, कि वी विल ओनली टॉक अबाउट हाउ वी कैन विन, और इसमें एवरीबडी विल कंट्रीब्यूट, क्योंकि जब सारे कंट्रीब्यूट करेंगे और सबको लगेगा कि नहीं वी आर हियर टू विन, तो अपने आप आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। तो इस बार हम लोगों ने जो डिफरेंट चीज़ें करी हैं वो यही करी है कि हार्ड वर्क तो हम इतने सालों से कर ही रहे थे, डे नाइट मेहनत तो हम कर ही रहे थे, लेकिन द ओनली थिंग वाज कि एक साथ आकर जो जीतना कैसे है, ट्रॉफी कैसे जीतनी है और उसके लिए हमें क्या करना है। तो वी वर टॉकिंग अलॉट, ओके, उसमें वो टॉक करने से क्या हो रहा था कि हम लोग डे एंड नाइट उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, जब भी रूम में अकेले बैठ रहे थे, मतलब सिंगल माइंडेड फोकस। तो फोकस सिर्फ एक ही था कि जीतना कैसे है, और सब यही बात कर रहे थे कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता कि एक होम टीम होम में वर्ल्ड कप जीतेगी, और इमेजिन पूरा स्टेडियम हमारे लोगों से भरा होगा, एंड दैट डे द एंटायर स्टेडियम वाज ब्लू। तो दैट वाज समथिंग लाइक ये अभी पहले हमने कभी नहीं देखा था। तो यू कैन क्लैप। पूरा स्टेडियम में लोगों ने ब्लू जर्सी पहनी हुई थी, द वे यू नो दे वर सेलिब्रेटिंग। तो आई थिंक अब इवन दो जो लास्ट कैच भी मेरे पास आया तो उस वीडियो को मैंने पता नहीं कितनी बार देख लिया है। तो एवरी टाइम आई एम वाचिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेडियम कि वहाँ पे लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ। तो आई थिंक वो मोमेंट ऐसा था कि यू नो जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने ड्रेसिंग रूम में बात करी, इमेजिन करा, विजुअलाइज करा, और वो एग्जैक्टली वैसे हुआ। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू एंटायर टीम, क्योंकि जब अपना माइंड आप चेंज कर लेते हो तो
आपकी पूरी दुनिया चेंज हो जाती है. You know, one of the very unique things about the celebration after the World Cup, and I think Ashwin pointed this out, कि ये आदमी, male cricketers would not have done this, is the way you celebrated the women who came before. तो मिताली राज, झूलन गोस्वामी were in the field, और किस तरह से आपने आप लोगों ने उनको भी कप दिया कुछ क्षण पकड़ने के लिए, and you said this is for, you know, the women who fought this before, जब कोई नहीं attention pay करता था. So what made you all do that? Because men don't do these things. वेल देखिए, विमेंस क्रिकेट का अगर आप पीछे का हिस्ट्री देखते हो तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है, और कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि अगर आज हम क्रिकेट खेल पा रहे हैं तो वो मिताली दी है, झूलन दी है, अंजुम दी है, और इवन उनसे पहले के जो क्रिकेटर्स थे, डायना मैम, शुभांगी मैम, तो आई थिंक उन लोगों ने उस टाइम पर क्रिकेट खेलते रहे जब अपनी पॉकेट से वो लोग पे कर रहे थे. हम लोगों को तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें प्लेट में मिली, लेकिन यू नो बताते हैं कि जैसे विदाउट टिकट दे वर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन्स, एक टीम के पास एक किट बैग होता था, खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते थे, बट स्टिल जो उनका पैशन था उन्होंने विमेंस क्रिकेट को अभी तक जिंदा रखा, और उनकी वजह से हम लोग क्रिकेट खेल पाए. तो आई थिंक वो हमसे भी ज़्यादा ये विक्ट्री डिज़र्व करते थे. द मोमेंट वी सॉ देम इन द स्टेडियम, तो पहले हम लोग भाग के उनकी तरफ गए, क्योंकि वी ऑल वर यू नो, जब हम लोग विजुअलाइज भी करते थे और मेडिटेशन में हम लोग यही बात करते थे कि वी वांट देम टू बी पार्ट ऑफ दिस. और इंडिया में वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद इससे बड़ी ओकेशन नहीं हो सकती थी यहाँ पर हम उन सब के साथ सेलिब्रेट कर पाते. आपके लिए टू गेट टू दिस पॉइंट सबसे मुश्किल चीज़ क्या रही है? इज़ इट इंटरेस्ट टू द पब्लिक, जो तो आप बहुत है? Is it resources? Is it societal attitude? क्या रहा है? What has been the most difficult part of your journey? वेल स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई वॉज ऑलमोस्ट पास 10th जब मुझे पता चला विमेंस क्रिकेट के बारे में, तो मेन तो अवेयरनेस ही नहीं थी. दैट तो वाज, आप मेंस क्रिकेट देखते थे? हाँ, मैं सिर्फ मेंस क्रिकेट देखती थी. जैसे मेरे पापा के फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे जो गली मोहल्ले में हम लोग खेलते हैं, बस वैसे ही खेलते थे. तो आई थिंक वो जो शायद अगर मैं उससे पहले भी यू नो मुझे पता होता विमेंस क्रिकेट, और इमेजिन कि और भी कितना टैलेंट इंडिया में आता खेलने के लिए, तो आई थिंक अभी के टाइम पे जो यू नो अवेयरनेस है, अभी सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा करें, लेकिन पहले के जो पेरेंट्स का वैसा माइंडसेट बिल्कुल नहीं था. स्पोर्ट्स मतलब वो सिर्फ ये सोचते थे कि टाइम पास कर रहे हैं, अभी थोड़ा लाइफ में सीरियस हो जाएं. लेकिन मतलब अगेन आई वांट टू गिव क्रेडिट टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मेरे इस ड्रीम को, इवन दो दे ऑल्सो नो कि हमें विमेंस क्रिकेट के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है, बट स्टिल आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट बिकमिंग विमेन क्रिकेटर. और जब मैं टीवी में मैच भी देखती थी तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, मुझे इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना है. तो आई थिंक वो फिर भी मुझे कभी रोकते नहीं थे. दे वर लाइक कि इफ़ शी इज़ यू नो ड्रीमिंग, और वो जो भी ड्रीम कर रही है, मेरे पापा मुझे बिल्कुल टोकते नहीं थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. वो सिर्फ यही बोलते थे हाँ क्यों नहीं होगा. इवन दो मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसे बोलते थे कि जब मैं उनको बोलती थी मुझे सहवाग के साथ ओपन करना है, मुझे सचिन के साथ ओपन करना है, तो वो ऐसे देखकर मुझे बोलते थे दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम लड़की हो, लड़कों की क्रिकेट में कैसे खेलोगे. तो मतलब आई वॉज सो यंग, और मैं अपने पापा की तरफ ऐसे देखती थी और बोलती थी ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मतलब आई नो हाउ टू बैट, आई कैन बैट विद देम. तो पापा वॉज लाइक नहीं आप करोगे बैटिंग, ऐसा कुछ नहीं आप खेल. तो आई थिंक पापा ने मुझे कभी रोका नहीं. तो आई थिंक स्टार्टिंग के जो स्ट्रगलिंग डे थे वो यही थे कि आई वॉजंट अवेयर अबाउट विमेंस क्रिकेट, और आई थिंक पापा ने वो जो मुश्किलें थी उनको बहुत कम करा, क्योंकि ही डिडंट स्टॉप मी टू ड्रीमिंग अबाउट दैट. सो आई थिंक ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग और हु आर लिसनिंग, प्लीज़ आपके बच्चे जो भी ड्रीम देखते हैं, वो जो भी बनना चाहते हैं, एटलीस्ट गिव देम अ चांस. क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे चांस नहीं देते और मेरे पेरेंट्स मुझे उस टाइम पे टोक देते और बोलते कि कुछ और ड्रीम करो, तो शायद मैं अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं होती जितना आज हूँ. तो आई थिंक पेरेंट्स play a very big role. I wish we could have had your parents here. I have time for just 2 questions from the floor here in the front row. Yes? Stand up, stand up. Let's get you the mic. I don't think there's a mic on the floor. Yeah, there it is. Okay. Hello. Congratulations. I was there on the day of the match. Of on the match? Yes, I saw it. How did it make you feel?
I am doing a PhD on women's cricket now. अरे So that's how. वाह! So I rushed from a wedding. I said I have to see this. Thank you so much for making this happen. I'm too emotional right now. But one Why thing, does it make you feel like it felt personal? जब मैं भी मैच देख रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था this is so personal, and I think every woman somehow felt like that, नहीं? I played a cricket match in the morning and came here on the turf though. So actually, what I wanted to ask you is, you know, now that you're getting like the women's team is getting all the attention, I am focusing on something that is how has WPL impacted your cricket, and you know we are getting a lot of talent from villages and rural areas where they couldn't probably have access to all these opportunities. So how has it changed in the last couple of years? And I believe that a lot of the members of the winning team were WPL discoveries. यस अभी अगर आप देखोगे तो हमारी टीम में क्रांति है, चरनी है, दे आर यू नो WPL से वो लोग आए हैं, दे डिडंट प्ले मच डोमेस्टिक. तो आई थिंक WPL ने हमारे विमेंस क्रिकेट का पूरा यू नो फेस चेंज कर दिया है, क्योंकि उससे पहले वी वर स्ट्रगलिंग टू गेट गुड प्लेयर्स, बट अभी WPL की जितनी भी फ्रेंचाइजीज है, दे आर रियली वर्किंग हार्ड टू गेट यू नो इंडियन टैलेंट, और उनकी वजह से यू नो हमारी इंडियन टीम और भी स्ट्रांग हुई है. तो नो डाउट कि अगर हम इतना क्रेडिट दे रहे हैं WPL को, वो डिज़र्व करता है. और आई थिंक इस साल और भी बहुत यंग टैलेंट पिक हुआ है, एंड होपफुली दे विल ऑल्सो यू नो विल सी इन द इंडियन टीम, एंड विशिंग देम लक कि वो WPL में अच्छा पार्टिसिपेट करें और अच्छी परफॉर्मेंस निकालें. Okay, one more question. Thank you This is so a red t-shirt boy who's looking very enthusiastic. Yes. हाँ जी. अरे आवाज ही नहीं आ रही. आजा, take that mic. Take that mic. Take that mic. It's okay. हाँ. Oh my God, this is my moment. Harry Di, I love you so much. From 2017 semi-final against Australia, I love your batting. 171 not out to Australia's 89 runs in semi-final. I was there. So, which innings did you like? That is my first question. And secondly, since 2017-18, I am a big fan. I'm following like Smriti Di, Harman Di, Jemmy Di, and all other people I love. Like after beating Australia team, which is a 7 times world champion, उनको हराना, I think world से सबसे biggest ego satisfaction moment है. So, I think जो चीज़ रोहित सर इन 2023 नहीं किया, वो आप लोग करके दिखाए. This is the biggest. Yeah, ma'am. So, ma'am, I'll come to my question. चलो जल्दी से ना. Oh my God. So, 171. He's so in love right now कि भूल गया सब कुछ. Yeah, ma'am. So, ma'am, 171, which is the best innings? 89 runs against Australia, 171. That I want. Yeah. अच्छा, which is the best? मतलब which is the most special moment to you? वेल दोनों ही हैं, क्योंकि 171 ने विमेंस टीम को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन अस कि वी कैन यू नो प्ले ऑन बिगर स्टेज. हम लोग विमेंस क्रिकेट को भी आगे लेके जा सकते हैं. और अभी जो लास्ट इनिंग हुआ सेमीफाइनल में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि सेमीफाइनल था, होम में हो रहा था और ऑस्ट्रेलिया था सामने. Okay. So, Ma'am, one last thing. Okay. Just a moment. I actually met Jemima in 2021 अच्छा, in बस Nerul now. Gymkhana. अच्छा, सुनो I ना. told, just a moment. मेरा भी एक सवाल है ना, मुझे भी पूछना. अच्छा, I have. Thank you. Thank you, Baba. One question there. Stand, and that's the last question. Okay, no flowers. You have to ask your question from there. I'll take the flowers later. Ask the question. हेलो हरमन. माइक तो ले लो, इतना एक्साइटमेंट. हाँ. हेलो हरमन, माई सेल्फ श्रुति. मैं भी स्पोर्ट्स में हूँ. मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. 3 बार मैंने गोल्ड जीता है, 2 बार सिल्वर जीता है.
बट रिसेंटली आफ्टर वर्ल्ड कप मेरी भी नेशनल्स थी, वहाँ पर मुझे इंजरी हुई, उसके बाद मैंने खेला है तो हमें सिल्वर बैठा, बट उसके बाद आई रियलाइज़ कि सिल्वर मैटर ही नहीं करता, सेकेंड रैंक कभी मैटर नहीं करता। एंड तभी मुझे रियलाइज़ हुआ जब मेरे टीममेट्स ने मुझे ही कहा कि ये तेरी वजह से हुआ, बट उन्होंने वो नहीं देखा कि इंजरीज में होकर इकलौता गोलकीपर है अपने पास, फिर भी उसने खेला है। कौन सी गेम खेलते हो? बैंडी, आइस हॉकी टाइप गेम है, रशियन गेम है, ये गेम मैं खेलती हूँ। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कैसे करना है, और मुझे जेन्युइनली मैटर नहीं करता ये सब चीज़ें जब से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया है। लाइक ट्रोल्स, क्या कोई बोलता है, क्या कुछ बोलता है, मुझे कभी मैटर करने नहीं लगा है जब से मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया है। But you know what? I'll hold you there because आपने लड़कियों की जिंदगी, ये कॉन्फिडेंस जो है ना, आपने बदल दिया है. That is the point, right? ट्रू Isn't that the point? एंड मैम एक्चुअली मैं आज पूछना चाहूँगी, मैंने सोचा नहीं था ये पूछने का चांस कभी मिलेगा, बट जब वर्ल्ड कप्स में जो बैक टू बैक हमने मैचेस हारे हैं, उसमें जो ट्रोल्स मिल रहा था, लिटरली मैं, मेरी फैमिली एंड मेरे फ्रेंड्स रो रहे थे, बट आपने वो फेस किया। यू आर रियली स्ट्रॉन्ग, लाइक Okay, but it's a good question. मैं भी पूछ रही थी, जब क्रिटिसिज्म आता था तो आप कैसे डील करती थी? देखिए, थोड़ा सा हाँ. जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, और पहली चीज़ यही था कि फ़ोन ऑफ ही था। ये फ़ोन ऑफ ही रखना चाहिए। देखिए, फोकस होना बहुत इम्पोर्टेंट था, और जैसे मैंने पहले बोला कि जितने भी हमने कैंप्स करे, हम उसमें बहुत सेल्फ टॉक कर रहे थे, हम उसमें बहुत टीम बॉन्डिंग सेशंस कर रहे थे, और उसमें हमने जितने भी हम लोग थे जिन्होंने पहले भी वर्ल्ड कप खेले हैं, तो हम सब अपना एक्सपीरियंस टीममेट्स के साथ यही शेयर कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे यंग प्लेयर थे जो पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने वाले थे, और ओडीआई वर्ल्ड कप वाज लाइक, इट वाज अ वेरी लॉन्ग टूर। इसमें अप्स एंड डाउन होने वाले हैं, बट मैटर ये करता है कि आप लास्ट में कौन सी पोजीशन पे आते हो, स्टार्ट कैसे होता है वो मैटर नहीं करता है, मिडिल में कहाँ पर हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करेगा कि हम लास्ट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो उसके लिए कभी कभी ये होगा कि आपका स्टार्ट अच्छा होगा तो मिडिल फेस थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, फिर एंड भी अच्छा हो सकता है। तो वी ट्राई टू कवर ऑल द पार्ट्स, कि जिसमें हो सकता है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, हो सकता है लोग आपको इतना हवा में ला के रखेंगे कि फिर आपसे वो भी ना हैंडल हो। तो बेटर यही है कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम ऑल द टॉक्स और फोकस अपनी गेम पे करो, और गेम ही आपके बिहाफ पे बात करेगी। बिल्कुल, पर उसके लिए एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है, आपकी टीम में म्यूजिक बहुत होता है, और मैंने एक वीडियो देखा जिसमें इवन यू आर सिंगिंग, यू सॉ दैट वीडियो? यू, मतलब वो पीछे ट्रैक शायद चल रहा था और आपने एक बूम बॉक्स पकड़ के आप, यू रिमेम्बर? कैन यू सिंग दैट फॉर अस? आई थिंक वी हैव वेरी बैड सिंगर। या, और मेरे को लिरिक्स तो वैसे ही नहीं याद रहते। हाँ, बैड बॉय, यस यस, हाँ। बिल्लो तेरे यार दी चढ़ाई नहीं दुनिया में, मेरे को लिरिक्स याद ही नहीं रहते, आई एम सॉरी। ट्रैक सुना दूं? ट्रैक सुनाओ भाई। ट्रैक है क्या? वो वीडियो है हमारे पास, हाँ, एंड देन शील सिंग विद इट। दिस इज अमेजिंग। हरमनप्रीत जी, आपकी कितने टैलेंट्स हैं? मैं तो बहुत बढ़िया, तो जरी नहीं हो जान दिया। एक्चुअली मैंने ना ये प्लान करा था कि कुछ और ही हो गया। मैंने शायद जब फर्स्ट टाइम इंडियन टीम में डेब्यू करा था तब स्पीकर लेके गई थी। अच्छा। दैट वाज वर्ल्ड कप फाइनल में मैंने स्पीकर लेके गई, और मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल रही थी कि जब फाइनल ख़त्म होगा ना तो ये सॉन्ग पे मैं डांस करते हुए वापस जाऊंगी। हाँ। तो जीते, और जीतने के बाद वो फिर मुझे करना ही था क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, तो फिर मैंने स्पीकर पे गाना लगाया और रूम पे वापस गई। अमेजिंग। अब 2 लाइन तो आपको गाना है। इफ वो लिरिक्स नहीं आ तो अपनी एंथम, जो आपका सॉन्ग टीम का एंथम था, वो तो याद ही वेरी हो। बैड इन सिंगिंग। आप मुझे बैटिंग करने के लिए बोलो, मैं भी कर देती हूँ। Okay, fair enough. Before we let Harman go from the stage, there are 3 more special people I'm going to call on the stage.
First, Harmanpreet and her team led India to victory in the World Cup. And soon after, India's blind women's cricket team also won the World Cup. And I want to welcome on stage the captain of that team, Deepika and Seemu. And welcome! Can we have a big round of applause for this moment? सीमू जी और दीपिका जी, हरमन जी आपके साथ खड़े हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनको? We have 2 World Cup champions on one stage. या हरमन आप काफ़ी बार बातचीत होती रहती है। इन लोगों से भी बहुत मोटिवेट हुए हैं हम। बहुत बार देखा इनको खेलते हुए। ये लोग तो मतलब वर्ल्ड चैम्पियन तो डे 1 से हैं। जिस टीम के साथ भी खेलते हैं 1 साइडेड मैच जीतते हैं। आई मीन और अभी बैक स्टेज भी हम बात कर रहे थे तो शी वॉज टेलिंग के देवर वॉचिंग ऑल आर गेम्स। हम अपनी प्रैक्टिस उसी हिसाब से कर रहे थे। तो हम लोग जैसे ही वर्ल्ड कप जीते उसके बाद दे ऑल्सो गॉट सो मोटिवेटेड कि अभी इनको इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। तो आई थिंक बैक टू बैक विक्ट्रीज और अच्छा लग रहा है कि इंडिया बार बार सेलिब्रेट कर रहा है और लड़कियां उसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। Seemu and Deepika, would you like to say something? थैंक यू। हम कैप्टन से मौका मिला हम लोग को बात करने के लिए, मिलने के लिए। एक्चुअली पहली बार हमने मिला था मुंबई में, आई थिंक इफ शी रिमेंबर। ग्राउंड में हम मिले थे, हम फोटो खींचे थे। तो दोबारा हम लोग को मौका मिला। सब थैंक यू सो मच। आप कुछ कहेंगी? हरमन दीदी लॉट ऑफ सपोर्ट द ब्लाइंड क्रिकेट। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। Thank you. Inspiration. She's your inspiration. Oh, look at this moment, guys. It doesn't get better than this. And now the grand felicitation of our champions. This has been a festival that has celebrated women, and men have taken part in that celebration. So we thought we must end the day by asking one of our most celebrated male stars to honor these 3 wonderful women on stage while we also honor him. Please put your hands together for the amazing Rajkumar Rao. May I please ask you to do the honors for Harmanpreet first? Applause! Jay! She's the pride of her nation. We all felt so proud, so proud. I was watching it live, Harman, and I can't tell you that catch, that moment will live with me forever. And thank you for making us so proud. Thank you for making us the champions of the world. And thank you, Seemu and Deepika as well. Here, Matlab, you what have a to- year. You have to award Yes. them too. Deepika and... Applause, guys. Another world champions. So Raj, Thank you. I want to ask you, when you were watching the World Cup final and you saw Harman's winning catch, what was going through your mind? हम लोग सभी वो मैच देख रहे थे. I'll tell you, Patralekha 9th month pregnant थी. और of course, you know, I'm a very dedicated husband. पर मैंने उसको बोला था, please ये time मुझे थोड़ा चाहिए because मैं ये match नहीं छोड़ सकता. And I'm so glad I witnessed that moment live because you know the feeling. मतलब वो जो feeling होती है ना World Cup winning moment की, वो जो हरमन ने हमें दिलाई, टीम ने हमें दिलाई. I think it's just the most wonderful feeling. वो कहीं नहीं आती है. Something you want to ask her. Take over my role for 5 minutes. Something I want to ask her. You take over my role for 5 minutes. So I just became a father to a baby girl. She is 15 days old.
तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि व्हाट वुड यू से कि एज अ फादर, बिकॉज योर फादर सपोर्टेड यू सो मच, वी ऑल नो योर जर्नी, आपकी जर्नी हमने देखी है, हमें पता है आपके फादर ने आपको कितना सपोर्ट किया, तो आप मुझे क्या कहेंगी मैं कैसा बाप बनूं, क्या क्या अपनी बेटी को? आई थिंक उसके लिए ज़्यादा बेटर एडवाइस मेरे डैड दे सकते हैं. बट आई मीन आई वॉज वेरी क्लोज टू माई डैड. वो जो बोलते थे वो मेरे हीरो थे, मतलब मेरे हीरो है. मैं जब छोटी भी थी तो मैं उनको इतना ऑब्जर्व करती थी. मुझे ऐसे होता था कि जैसे ये बात करते हैं, जैसे ये खेलते हैं, मुझे वैसे खेलना है, मुझे उनके जैसा बनना है. तो बेटी के लिए पापा बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसको बहुत सारा प्यार करना, उसको वो बनने देना वो जो बनना चाहती है. आई नो यू आर ऑलरेडी वेरी फेमस, डोंट पुट एनी प्रेशर ऑन हर. नहीं, पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप ऑलरेडी उसकी एक इंस्पिरेशन है. आई एम श्योर बाय द टाइम शील ग्रो अप एंड शील लाइक से हमें 83 अभी भी याद है, हम बातें करते हैं, इस मोमेंट की बात वो भी करेंगी अपने दोस्तों के साथ, जनरेशन के साथ. सो थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग हर ऑलरेडी. यू नो राज, हम लोग बात कर रहे थे कि जब कोई सक्सीड करता है तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वो लोनलीनेस होता है एक जर्नी का, तब कौन साथ खड़ा होता है, दैट मैटर्स. सो आई वाज वंडरिंग इफ यू वांटेड टू टॉक, राज की अपनी जर्नी भी इज़ अ वेरी सेल्फ मेड जर्नी लाइक योर्स. आप भी कहाँ से कहाँ और वो भी कहाँ, 2 stars और 4 stars on our stage actually. Something that you were watching that match and you thought कि अगर मैं हरमन से मिलूंगा तो मैं ये पूछूंगा. मैं ये पूछना चाहूँगा बिकॉज आई नो कि हमारे देश में ऑफकोर्स वी सेलिब्रेट मेंस क्रिकेट अ लॉट, और वुमेन्स क्रिकेट इतने सालों से है, पर हम लोग ज़्यादा उसके बारे में जागरूक थे नहीं. फॉर सम रीज़न, फॉर सम अनफॉर्चुनेट रीज़न हम लोग ज़्यादा सेलिब्रेट कर नहीं रहे थे. बट मैं हरमन को बोलना चाहूँगा कि क्या वो जो प्रेशर था कि आई कैन इमेजिन कि फाइनल का जो प्रेशर होता है कि ये आर या पार की लड़ाई है, ये आर या पार वाला मैच है, ये बहुत चीज़ें डिसाइड करेगा, बहुत चीज़ें बदलेगा आने वाली जनरेशन के लिए, गर्ल्स के लिए. तो वो प्रेशर में हाउ डिड यू मेंटेन योर काम, आपने कैसे अपनी टीम को मोटिवेट रखा, वो मैं जानना चाहूँगा. बिकॉज हम लोग को भी बहुत प्रेशर आता है बहुत बार. तो उस प्रेशर के लिए अगर आप स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है उसको आप बता पाएँ कि प्रेशर में कैसे काम और हैंडल करने को उसको. मैंने पहले भी यही बात बोली थी कि मैंने लाइफ में बहुत हारा है, और हारने के बाद आप एक ही चीज़ सोचते हो कि इससे ज़्यादा क्या हारोगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना हार चुके हो. अभी अच्छा करोगे तो जीतोगे, तो जीतने के बाद क्या फील होता है बस उसके बारे में सोचो. और बस वही ये था कि इस बार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, घर पे वर्ल्ड कप हो रहा है, मतलब सारी दुनिया हमारी, मतलब पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरी कंट्री सेलिब्रेट कर रही है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, पूरा स्टेडियम. इनफैक्ट आर्टिफिशियल स्टैंड्स बनाने पड़े क्योंकि लोगों की टिकट की डिमांड इतनी ज़्यादा थी. तो दैट शोज कि सब ये वेट कर रहे थे कि कब ये टीम वर्ल्ड कप उठाए, और बस यही था कि इमेजिन करो कि अगर जब हम उठाएंगे तो कैसा फील होगा. तो बस उसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे थे. हमने देखा ही नहीं, इवन दो हम 3 मैच बैक टू बैक हार गए थे, और अभी सब पूछ भी रहे थे कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे. मैंने बोला मैंने वो देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने वो पार्ट को फील ही नहीं करा. मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में फील कर रही थी कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या फील होता है, और मैंने बस वही फील करा और वही हुआ. Amazing. अर्जुन की तरह आपकी नज़र सिर्फ मछली की आंख पर थी. अरे Raj, something you want to say? I know one of the films you've, I know. I was just telling them backstage. मैंने श्रीकांत एक फिल्म की है जिसमें जो एक बायोपिक है एक विजुअली इम्पेयर्ड एंटरप्रेन्योर की, और मैंने बताया था जब मैं अपनी रिसर्च के दौरान, बिकॉज श्रीकांत भी क्रिकेट खेलते थे, ब्लाइंड क्रिकेट, और बहुत अच्छा खेलते थे. तो फर्स्ट डे मैं कुछ 2-3 महीने पहले जब मैंने अपना काम शुरू किया, होमवर्क शुरू किया, तो मैंने सोचा चलो लेट मी ट्राई क्रिकेट ऑल्सो. सर कितना ही टफ होगा, मतलब ऐसे दिल्ली के लड़के तो गली में क्रिकेट बहुत खेल रहे हैं. तो मैंने सोचा आई जस्ट क्लोज माई आइज फॉर नाउ एंड आई जस्ट, वो बॉल से आवाज़ आती है तो आई जस्ट हिट इट, स्वीप करना था. ट्रस्ट मी वर्का मैंने स्वीप किया और मेरा रिब केज इतना बुरी तरह इंजर्ड हुआ. आई रियलाइज कि कितना टफ है ब्लाइंड क्रिकेट ऑल्सो. देखने में बहुत आसान लगता है, इट्स सो टफ. वो जजमेंट रखना, वो फोकस रखना, सिर्फ आवाज़ के थ्रू उसको खेलना, इट्स जस्ट अमेजिंग व्हाट दीज गर्ल्स हैव डन. स्पेशली ये तो इतनी सेंचुरीज मारती है, मतलब इट्स कुछ बोलेंगे आप? सिमू She's shy. Last word to Raj and Harman. Something you both have learned from your own journeys that you would like to inspire our audience with as we close this finale session. Harman, you go first, please. I would love to listen to you. I think अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, और क्योंकि मैंने पूरी लाइफ अपने ड्रीम को ही फॉलो करा है और उसके बिना किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा. जब आप अपने काम में इतना फोकस होते हो,
और पूरा हार्ड वर्क करते हो, दिन रात उसके बारे में सोचते हो, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलती है. तो आई थिंक वही एक चीज़ मेरे लिए हमेशा काम करी है, और आई एम श्योर कि आपके लिए भी वो चीज़ काम कर सकती है. बिकॉज आप जितने डेडिकेशन के साथ डे एंड नाइट, आई नो समटाइम्स बोरिंग लगता है, बट उसी में तो मज़ा है कि बार बार उठकर वही चीज़ करनी, और उसी में बार बार अपने आप को प्रो बनाना. और आई थिंक ड्रीम देखते रहो, और बड़ा वाला ड्रीम देखो, छोटे ड्रीम नहीं. थिंक बिग, ड्रीम बिग. राज, क्या बात. आई थिंक आई टोटली अग्री विद हरमन जो उन्होंने बोला कि मेरा भी यही है कि मेहनत करो अपने काम में, और अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करो. उसके अलावा कुछ मत सोचो. मैं कभी भी यहाँ पर इस शहर में, इस इंडस्ट्री में फेम, मनी, ये सब के लिए नहीं आया था. आई वांटेड टू बी एन एक्टर बिकॉज आई जेन्युइनली फेल इन लव विद माई आर्ट फॉर्म. और आज भी मुझे उतना ही डर लगता है एक नई फिल्म शुरू करने से पहले, पर जब डर लगता है उतना ही ज़्यादा मज़ा भी आता है कि ये कैसे होगा अब. तो हमेशा अपने काम से प्यार करो, उसके बाद बाकी सब सेकेंडरी है. फेम, मनी, सब कुछ अपने आप आ जाएगा. जस्ट लव व्हाट यू डू, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड डोंट बी अंडर प्रेशर. प्रेशर में कभी कुछ काम मत करो. मैंने कुछ एक दो काम प्रेशर में किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, बट हो गए. बट डोंट डू दैट. आई थिंक जस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड वर्क हार्ड एंड बी सिंसियर एंड लव व्हाट यू डू एंड बी कंपैशनेट एंड बी काइंड. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई थिंक आप जिंदगी में कहीं भी पहुंच जाओ, डोंट फॉरगेट योर रूट्स and don't forget why you started what you're doing. absolutely. I just want to say in the end that Rajkumar Rao has been such a partner and supporter of this forum. He's a real change maker, and he for she kaha jata hai, lekin bahut kam log aake actually support karte hain. So this is from me. Thank you so much. For all your progressive Thank you. empathy. Can we have a big round of applause for Rajkumar also? Thank you so much. And finally, to our world champions, to Harman, to Raj, to Simu, to Deepika, how about a standing ovation? Thank you, Harman. Thank you. I think they all want a photograph. Okay. Oh, acha, okay. Okay. This is his. Raj. ओहो, ओके, 2 minutes of this guys, नहीं तो यहाँ से तो आपको निकलने ही नहीं देंगे. बैठना है? Are you okay? Okay. Thank you very much, everybody. It's been a great day, and you've been a great audience. Bye bye till the next one. Thank you so much. Thank you.